Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will be having our 19th lecture, and that is also about corporate takeovers, a government mechanism. Before we start our today's lecture, let's have a quick review about what we studied in our last lecture. In our last lecture, we studied about the definition of takeover. Then we discussed the difference between mergers and acquisition. Very briefly, a merger when two firms join together for their business and they merge and become a new firm. Acquisition is basically when you take over or acquire, or you can say buy some another firm. So that is basically called acquisition. Then we discussed the importance of discussing merger and acquisition in corporate governance. As a students, you may have heard this term, that is merger and acquisition in finance subjects. But why we study here in corporate governance? So a short question, or you can say you can make many other questions about this topic. So the answer of this question is very briefly that normally companies में merger या acquisition क्यों होता है, and the basic reasons is कि जब merger और acquisition के through आप companies की performance ठीक कर सकते हैं. Suppose there is a firm जिसकी performance ठीक नहीं है, जिसकी शेयर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में डाउन हो रही है, एंड मैनी अदर रीजंस. सो ऑब्वियसली कंपनी चाहती है कि वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करे ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो. ऑन द अदर साइड, या अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, सो ऑब्वियसली दे विल बी लुकिंग फॉर सम अदर फर्म्स टू कम एंड एक्वायर देयर फर्म्स. सो ताकि उसकी मैनेजमेंट ठीक हो और कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर प्राइस बढ़े. Then we discuss the general process that is involved in the acquisition and the merger. In both processes normally होता क्या है कि acquirer firm की तरफ से bid आती है, or you can use the word of tender to the acquiring firm. Now we have discussed the difference between acquirer and acquiring firm. Acquirer firm वो होता है basically जो छोटे firm को purchase कर रहा होता है या buy कर रहा होता है, या बड़ा firm that is called acquirer firm, या छोटा firm जो acquire हो रहा होता है, और we can say जो purchase हो रहा होता है, so that is called the acquiring firm. So normally for the bigger firm we use the word acquirer firm, and for the smaller firm the firm that is ready to purchase उसको हम acquiring firm कहते हैं. So general process में ये है कि bid acquirer firm की तरफ से जब bid आता है, so normally फिर board of directors में with the mutual consultation of the shareholders as well as the management team, if they come up with the conclusion that it is in the firm best interest to either merge with the bigger firm or to allow them to acquire our firm. So acquisition और merger में जो slight difference वो ये है कि merger में basically जब दो firms आपस में merge होती हैं, so obviously जब when they become the new firm, a single firm, तो उसको जब नाम मिलता है तो दोनों फर्म के मिलाने से वो नाम बनता है.
बिकॉज दोनों कंपनीज का अपना इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को पता चले कि इनकी मर्जर जो भी है दैट इज बिटवीन दीज टू कंपनीज. Like we have like Sony Ericsson, and there are many other examples of merger as well as acquisition. As far as the acquisition general process is concerned, acquisition में normally जो acquirer firm होता है, normally उसका नाम most of the time वो use होता है. Acquiring firm का नाम almost वो निकल जाता है firm के नाम से. In Pakistan, we can take the example of Zong. Zong basically acquired the Paktel telecommunication. So basically, in the market now, we have only the Zong telecommunication company, and कोई Zong Pak या Pak Zong इस तरह नहीं है. So normally acquisition में कंपनी का नाम जो एक्वायरर फर्म है वो मार्केट में रहता है, और जो एक्वायरी फर्म है उसका नाम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है मार्केट से. ऑन द अदर साइड मर्जर में वी मे हैव बोथ फर्म्स नेम इन द मार्केट. देन वी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस. कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर you go for the merger or acquisition. In that way we have first the type of merger or acquisition. Basically what type of merger you have for your company with other company. इसमें हमने discuss किया था the vertical as well as the horizontal. Horizontal means on the same level, कि एक company merge with some other company जो उसी की तरह बिजनेस करती हैं, एंड दे हैव द सेम sort of business as well as they have the same sort of structure. So इसको कहते हैं मर्जर. फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जब मर्ज होता है तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मर्जर. या एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को के साथ मर्ज करती है तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मर्जर. वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, डिफरेंट बट सपोर्टिव इंडस्ट्री. वर्टिकल में जब दो कंपनीज आपस में मर्ज करती है तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस पैटर्न और डिफरेंट होता है, लेकिन सपोर्टिव. एंड वी टुक द एग्जांपल और फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और वो एक टायर इंडस्ट्री को, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो एक्वायर कर लेती है या मर्ज कर लेती है. सो ऑब्वियसली दैट इज टायर इंडस्ट्री इज समथिंग एल्स, वेयर एज द कार मैन्युफैक्चरिंग industry is something else. So but that is supportive to the car manufacturing industry, not entirely different. So vertical means merging with a company that is a bit different but supportive to the bigger firm. Then we discussed the valuation of a firm involved. कि जब merger या acquisition होता है तो नॉर्मली इट्स अ मैटर ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज. सो अब वो जब आपस में मर्ज होते हैं तो उनकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है कंपनी की, वो उसको वैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है. एंड वी यूज द वर्ड दैट इज कॉल्ड फेयर प्राइसिंग, कि मर्जर में दोनों कंपनीज फेयर प्राइसिंग करे ताकि दोनों को फ़ायदा हो और नुकसान ना हो. इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मली द ट्रेंड इज कि जो एक्वायरी फर्म होता है उसकी ये कोशिश होती है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा लगे, वेयर एज जो एक्वायरर फर्म होता है उसकी ये कोशिश होती है कि जो फर्म वो एक्वायर कर रहा है उसकी वैल्यू वो कम लगे. एंड दिस इज़ क्वाइट नेचुरल फिनोमेना कि जब आप किसी शॉप में किसी से शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट ये करता है कि आपसे ज़्यादा पैसे लें, और एज अ कस्टमर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कम से कम पैसे दें. सो दैट इज़ नेचुरल फिनोमेना.
in valuation of firm, it is very important कि दोनों फर्म एटलीस्ट ये एवेलुएट करे कि आइदर ये मर्जर उनके लिए अच्छा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर एक्वायरी फर्म की बात करें हम, तो एक्वायरी फर्म एटलीस्ट दे मस्ट हैव दिस सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन कि इस प्रोसेस के बाद उसकी कंपनी या तो अच्छी होगी या बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो सकती है, बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो सकती है. So this sort of valuation is very necessary for the acquirer firm. On the other side, we have the acquirer firm. So acquirer firm को भी they must have this sort of realization कि भाई कंपनी जो हम acquire कर रहे हैं, whether we will get the same return from this process or not, because it's not always the case कि जब आपकी एक्विजिशन हो जाती है, सो ऑब्वियसली यू ऑलवेज गेट द मैक्सिमम रिटर्न. देयर मे बी द अदर वे अराउंड. सो देन वी डिस्कस द पेमेंट मोड कि नॉर्मली एक्विजिशन में जब आप दूसरी फर्म को एक्वायर करते हैं, सो व्हाट इज नॉर्मली द मोड ऑफ पेमेंट. ऑब्वियसली द फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट इज कैश. कि जो फर्म एक्वायरी फर्म, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन डेस्परेट पोजीशन, बिकॉज आप उसकी फर्म को एक्वायर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली अब वो और रिस्क नहीं लेना चाहते, सो दे आर लुकिंग फॉर द कैश पेमेंट. जो उनके पास स्टॉक्स हैं, सो दे वांट द एक्वायरर फर्म टू गेट देम द कैश. अनदर ऑप्शन as far as the payment is concerned, that is the newly created stocks. के एक्वायरी फर्म के पास ऑप्शन ये भी होती है कि वो एक्वायरर फर्म की शेयर्स के साथ मर्ज हो गए, एंड दे कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज और यू कैन से द प्रीमियम इन देयर शेयर प्राइस. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक एक्वायरी फर्म है, उसकी शेयर प्राइस दैट इज 10 रुपीज. जब वो दूसरी जब एक्वायरर फर्म एक्वायरी फर्म को ले लेता है, तो ऑब्वियसली उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जिसमें द बिगेस्ट रीजन इज दैट इज हैविंग गुड रेपुटेशन ऑफ द एक्वायरर फर्म. सो ऑब्वियसली अगर उसकी शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए होती है, सो इन द नियर फ्यूचर इफ ही वांट टू सेल शेयर्स in the market, so he will get a very handsome return by selling his shares. Then we discuss the new corporate structures. Okay, what would be the corporate structure after the merger or acquisition? Very briefly we can say कि merger में normally दोनों companies की management मिल जाती है, and they work hard for their survival and for their good name. एक्वायरी फर्म में नॉर्मली एक्विजिशन में जो एक्वायरर फर्म होता है, वो एक्वायरी फर्म की मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम वो फायर कर देते हैं. एंड ऑब्वियसली द आर्गुमेंट इज कि बिकॉज ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंसी कंपनी इस हालत को पहुंची है, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक एनी मोर रिस्क बाय गेटिंग देम हायर्ड अगेन. सो एक्विजिशन में एक्वायरर फर्म एक्वायरी फर्म की मैनेजमेंट को फायर कर देते हैं. द लीगल इशू इज बेसिकली के सपोज इफ द गवर्नमेंट थिंक दैट द मर्जर और एक्विजिशन ट्रेंड बिटवीन द कंपनीज कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट, सो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कैन स्टॉप दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेंड, कैन स्टॉप द trend of acquisition, can stop the trend of merger. Because अगर 10 कंपनियां काम कर रही हैं, so you can have a very favorable competition between these companies. You may have good quality of product as well as with cheaper prices. लेकिन अगर ये कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं and can become a new company, या अगर ये कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर कर लेती हैं, so that's how they can make the monopoly in the market. So लीगल इशू इज अगर गवर्नमेंट देखती है कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है मार्केट के लिए, सो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कैन स्टॉप देम.
So dear students, today's lecture is we will discuss briefly about the merger and acquisition. कि merger acquisition क्यों होता है basically. There are three basic reasons. The first one is strategic reason, that is basically to reduce cost and obviously to get a new business. The second option is synergistic reason, means कि merger or acquisition में basically the companies they want to work together rather than individual efforts. We will discuss it in detail inshallah. Diversification reduce the risk by making investment in a different location. Diversification in merger and acquisition, basically the companies they want to invest in different sectors in different locations, and the basic reason is to reduce the risk element and as well as to make sure some return from their investment. And then we discussed are corporate takeovers good for shareholders, कि corporate takeovers ये shareholders के लिए अच्छा है या नहीं है. We will discuss inshallah today two different aspects, that is the acquired firms shareholders perspective as well as the acquiring firms shareholders perspective. Then the target firm or the acquiring firm, their condition, what they basically think about this whole process, what they really want the acquirer firm during this process. But the end of the story is, or you can say the bottom line is that they can get some fair increase in their share price. So is it appropriate to acquire successful firm or unsuccessful firm? Now the question is कि during this process of acquisition or basically merger, कि either you go for the successful firms to merge with them, or you should go a successful firm to acquire the successful firm. On the other side, या आपके लिए अच्छा होगा कि आप unsuccessful firm को acquire करें या उनके साथ merge करें. So what would be the case or what would be the scene? So we will discuss it today. What if the management acquiring firm didn't accept the takeover bid? Suppose अगर management, because normally dialogues होती है between the management, between the acquired firm or the acquiring firm management, because shareholders तो they are on the back seat. लेकिन अगर management suppose if they don't want their firm to be acquired, फिर क्या scene होगा? So normally hostile takeover is in the eye of the beholder, and as we discussed कि hostile takeover basically जब एक firm दूसरी firm को acquire कर लेता है, so obviously after a very short time normally we have seen different cases कि जिसमें acquiring firm की management को fire किया जाता है. So normally they normally see this sort of trend as a hostile takeover from the acquirees firms or management. So but normally as you can see the statement, takeover, hostile takeover is in the eye of the beholder. उनकी नज़र में ये hostile एक किस्म का जुल्म हो रहा था उनके साथ, लेकिन this is not actually the case. Now brief overview of merger and acquisition. Merger and acquisition can occur for a variety of reasons. For various reasons we can see the merger and acquisition. The first one is basically strategic reason, जिसमें the first one is to reduce cost and to get new business. Merger or acquisition में जो main मकसद होता है obviously between the two different firms कि उनकी cost कम हो. We can take again the example of the car manufacturing industry as well as the tire industry. Suppose अगर दोनों industries अलग अलग काम कर रहे हैं, so टायर की मैन्युफैक्चरिंग उनकी भी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी as well as जो गाड़ियाँ बनाते हैं, so obviously they will be having a very huge cost for their manufacturing. जब टायर इंडस्ट्री और कार इंडस्ट्री आपस में मर्ज होती है
या फॉर एग्जांपल एक कार इंडस्ट्री टायर इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेता है, तो ऑब्वियसली द मेन थीम इज कि उनकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग वो कम हो और ऑब्वियसली उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कार इंडस्ट्री को जब वो टायर इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको वो टायर कम कॉस्ट पे पड़ेंगे एंड दैट्स हाउ दे कैन गेट मोर मनी फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली टायर इंडस्ट्री चूंकि एक्वायर हो रही है या अगर वो मर्ज भी हो रही है, सो ऑब्वियसली बाय हैविंग अ वेरी ह्यूज सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन विद द लार्जर फर्म उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज नेचुरल फिनोमेना। जब व्हेन यू मेक अ मैसिव प्रोडक्शन, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली यू फेस अ वेरी लेस कॉस्ट फॉर योर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर आप 10 पेन बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट थोड़ी सी और भी कम हो जाती है। अगर आप 1000 पेन बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट और भी कम हो जाती है। सो द थिंग इज जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली यू फेस लेस कॉस्ट फॉर योर प्रोडक्ट्स। सो मर्जर और एक्विजिशन में जब दो कंपनीज मिलके काम करेगी तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू गेट न्यू बिजनेसेस। अनदर पॉइंट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन इज कि बेसिकली यू गो फॉर सम न्यू बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल सपोज एक कंपनी है वो पाकिस्तान में काम कर रही है और वो इंडिया या चाइना की किसी कंपनी के साथ मर्ज होती है या वो इसको एक्वायर कर लेती है, तो ऑब्वियसली दे कैन गेट न्यू मार्केट फॉर देयर बिजनेसेस। सो मर्जर और एक्विजिशन से ऑब्वियसली यू कैन हैव एन एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स फॉर योर बिजनेस। अगेन फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है वो जर्मनी में काम कर रही है, सिमिलरली दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी दैट इज वर्किंग इन अमेरिका। अगर वो दोनों कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं, सो जो गाड़ियां जर्मन में बनती है तो ऑब्वियसली दे कैन गेट एक्सेस टू द अमेरिकन मार्केट एंड सिमिलरली जो गाड़ियां अमेरिका में बनती हैं सो दे कैन गेट एक्सेस टू द जर्मन मार्केट्स। So the main factor is basically of merger and acquisition is the strategic reasons, that is you want to reduce your cost and you want to get new business in the market. Synergistic reason, interaction or cooperation of two or more organizations to produce a combined effort greater than the sum of their separate efforts or effects. Another point is synergistic reason. Basically, the main one of the main purposes of getting toward the merger or acquisition is you want basically to increase your strength, because it's quite natural कि individual strength इतनी नहीं होती जितनी आपकी combined strength होती है। So अगर एक firm individually काम कर रहा है, अगर वो किसी दूसरी firm के साथ merge करेगा so obviously उसकी strength बढ़ेगी। In many ways they may have better management team, they may have more capital, they may have more market, more shares. So these are some of the reasons because of the synergistic reason, because of the combined effort they can have more profit for the firm. So one of the basic reasons for merger or acquisition is कि आप combine होके काम करना चाहते हैं। अगर एक कंपनी इतनी effectively काम नहीं करी, on the other side there is another firm which is not working very effectively, if they can combine together, so maybe they can boost or they can flourish in the stock market. Another reason of merger or acquisition is that is diversification. Diversification is a technique that reduces risk by allocating investments among various financial investments or various financial instruments, industries and other categories. Diversification means
कि जब आप इसलिए मर्जर या एक्विजिशन की तरफ जाते हो दैट यू वांट टू बेसिकली डाइवर्स योर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, इन डिफरेंट कैटेगरीज और इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो दैट्स हाउ उसमें ये होगा कि आपकी जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज हमारी एक फर्म है, हमने एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सपोज वी हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन शेल कंपनी। ऑन द अदर साइड देयर इज अ फर्म जिसने मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है। They have made investment in automobile industry, they have made investment in oil industry, they have made industries in real estate, in many other sectors. So for example अगर Shell company for example वो डूबती है या उसको कोई लॉस होता है, so हमें ज़्यादा लॉस होगा। On the other side जिस कंपनी ने ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो अगर एक सेक्टर में लॉस होता है तो 4-5 सेक्टर्स में उनको प्रॉफिट होगा। सो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स दैट यू वांट टू मेक योर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और फील्ड्स और लोकेशंस। बिकॉज अगर आप एक ही सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपका जो रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा। डिफरेंट सेक्टर्स में यू कैन रिड्यूस योर एलिमेंट ऑफ रिस्क। It aims to maximize return by investing in different areas. Again, the main theme or aim is कि आप अपनी जो रिटर्न है वो मैक्सिमम करना चाहते हैं। Most investment professionals agree that although it does not guarantee against a loss, diversification is the most important component of reaching long-range financial goals while minimizing risk. So through diversification we cannot 100% guarantee कि हमें लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस अगर होगा भी तो कम होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कंपनी पे कम होगा। ऑन द अदर साइड अगर सिंगल तरफ से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर उनकी तरफ से कोई लॉस होता है तो यू कैन फेस अ वेरी मैक्सिमम और मैसिव impact from that loss. Now, are corporate takeovers good for shareholders? Takeovers may be viewed as positive as well as negative in the stock market. Acquirer firm may want to use the infrastructure of the acquiring firm to have some ease in the business and want to have an increase in the share price. Similarly, acquiree firm would be thinking and happy by getting acquired by a large firm and definitely would be looking for higher and stable share price. But all these predictions can be viewed in a negative way in the stock market and can badly affect the share price. So dear students, as we have discussed, takeover basically is between the two firms, a small firm or large firm, the bigger firm or the smaller firm, or you can say inefficient firm as well as the efficient firm. So there is again two perspective, that is कि जो acquiring firm उसका क्या पर्सपेक्टिव है और जो एक्वायरर फर्म उसका क्या पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली जो एक्वायरर फर्म है वो ये चाहती है कि बाय हैविंग एन एक्विजिशन विद अदर फर्म वो उसकी एक्सपर्टीज यूज कर सकता है, उसकी मैनेजमेंट को भी यूज कर सकता है, इवन कैन यूज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर, and their obviously their market share in the and their market share basically. So जिस तरह we took the example of Zong and the Paktel. Zong ने Paktel को acquire किया, so the first thing is कि maybe they could have used their expertise कि जो acquirer firm के पास अगर एक्सपर्टी नहीं है किसी भी फील्ड में
तो वो एक्वायरी फर्म के अगर पास वो एक्सपर्टीज हैं तो वो यूज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी किस्म का, अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जोंग, बिकॉज पाकटेल ने जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो एंटीने लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े बूस्टर्स, वट एवर इट इज, सो उसको यूज करना, दैट इज द मेन थीम ऑफ द जोंग। बिकॉज अगर एक्वायरर फर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेगा, सो उसको बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सो अनदर थीम ऑफ एक्वायरर फर्म इज कि वो एक्वायरी फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो यूज करेगा। अनदर थिंग इज कि एक्वायरर फर्म दे बेसिकली वांट टू यूज द मार्केट शेयर ऑफ द एक्वायरी फर्म, कि मार्केट में समहाउ एक्वायरी फर्म का कुछ ना कुछ नाम है, सो वो उसको यूज कर सकता है। इस तरह ऑलमोस्ट सबको पता है कि जोंग ने पाकटेल को एक्वायर कर लिया है, पाकटेल को टेक ओवर कर लिया है। सो ऑब्वियसली जो पाकटेल का नाम था वो ऑटोमेटिकली जोंग के साथ अटैच हो गया है। So similarly, acquiring firm would be thinking and happy to by getting acquired by a large firm, and definitely would be looking for a higher and stable share price. ये तो हो गया acquired firm का perspective. On the other side, acquiry firm को भी पता होता है कि भाई उनकी कंपनी ठीक नहीं जा रही, उनकी देयर इज अ वेरी क्रूशियल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स, गवर्नेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। थर्ड, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेयर प्राइस कम हो रही है, और इन शॉर्ट वी कैन से कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्ट हो रही है, डूब रही है। सो इन दैट केस अगर कोई हैंडसम या इफेक्टिव कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है, तो एक्वायरी फर्म को कुछ ना कुछ सहारा मिल जाता है, बजाय इसके कि वो इस चीज का इंतजार करे कि मुकम्मल ही मार्केट से आउट हो जाए। सो दे सिंपली इनवाइट सम बिगर फर्म्स फॉर द टेक ओवर। तो उससे उनको फायदा ये होगा, द फर्स्ट थिंग इज कि जो अच्छे वर्कर्स हैं, जो हॉनेस्ट और टैलेंटेड वर्कर्स हैं, तो ऑब्वियसली दे विल रिमेन विद द फर्म, बिकॉज एक्वायरर फर्म भी नहीं चाहती कि अच्छा अगर मैनेजर है या अगर अच्छा अकाउंटेंट है या एनी वर्कर, तो वो उसको रख लेगी ऑब्वियसली। तो ये एक फायदा हुआ। और जो ऑनेस्ट नहीं है, जो इनएफिशिएंट है, जो इनकॉम्पिटेंट है, तो ऑब्वियसली दे विल गेट फायर्ड। ऑन द अदर साइड, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायरी फर्म का मार्केट में मौजूद है, सो दैट इज ऑलमोस्ट यूजलेस फॉर द कंपनी। तो उसकी अच्छी वैल्यूएशन करके उसको एक्वायरर फर्म से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। एंड द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द एक्वायरी फर्म शेयर होल्डर इज कि एक्वायरी फर्म का जो शेयर होल्डर है उसको या तो कैश पेमेंट मिल जाएगा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, या अगर वो कैश पेमेंट नहीं लेता, सो बाय हैविंग अ न्यू नेम ऑफ द एक्वायरर फर्म उसकी शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगी। सो इन नियर फ्यूचर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, इफ दे वांट टू सेल देयर शेयर्स, सो ऑब्वियसली उनको बड़ी हैंडसम अमाउंट मिल सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द you can say perspective for the acquisition from both the acquirer as well as the acquirer's side. So normally market में जब कोई भी फर्म दूसरी फर्म को टेक ओवर करता है, so these are some of the elements जो बाकी जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नजर आती हैं कि एक्वायरर फर्म को कितना फायदा होगा और एक्वायरी फर्म को कितना फायदा होगा। But all these predictions can be viewed in a negative way in the stock market and can badly affect the share price. But the thing is, suppose अगर stock market में बाकी जो investors हैं या stock market में अगर किसी merger या acquisition को
उसको वेलकम नहीं किया गया बाय द मार्केट, बाय द इन्वेस्टर्स. सो this can badly affect both the companies, or you can say this can badly affect the firm jointly. So जिस तरह as you know stock market में basically एक rumors चलती हैं, and according to that rumors आपकी share price या decrease या increase होती है. For example, let's take this example. एक कंपनी में फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा अच्छा सीईओ दूसरी कंपनी से आता है. सो अगर इस रूमर को स्टॉक मार्केट में अच्छा लिया गया तो ऑब्वियसली उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी. लेकिन अगर इस रूमर को या इस एक्ट को स्टॉक मार्केट में नेगेटिवली लिया गया तो ऑब्वियसली उस कंपनी की शेयर प्राइस डिस्टर्ब हो सकती है. फॉर एग्जांपल शेल कंपनी का सीईओ अगर पेप्सी में जाता है, सो no one can sure 100% कि इस ट्रेंड, this sort of trend is good for the Pepsi because Shell का CEO पेप्सी गया है. अगर स्टॉक मार्केट में इस ट्रेंड को नेगेटिवली लिया गया तो जो पेप्सी की जो शेयर प्राइस है वो कम भी हो सकती है. सो सिमिलरली हियर कॉर्पोरेट और मर्जर में या टेक ओवर और मर्जर में नॉर्मली इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि यू विल गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अगर आपका ये एक्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन इन्वेस्टर्स ने नेगेटिवली लिया, सो यूर फर्म विल बी इन ग्रेट ट्रबल. नाउ द टारगेट फर्म. Most of the time the target firm will enjoy a share price increase when its acquisition is announces to the public. Now we'll primarily discuss what is happening with the target firm during this process. So जब भी acquisition announce होती है, so most of the time almost 90% you can presume कि जो टारगेट फर्म होती है या जो एक्वायरी फर्म होती है उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी. बिकॉज द इन्वेस्टर्स मे बिलीव दैट नाउ दे आर इन बेटर हैंड्स नाउ. एज वी डिस्कस्ड कि द मेन रीजन ऑफ दिस इंक्रीज इज बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं इन द स्टॉक मार्केट वो ये जान जाते हैं, दे कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन कि नाउ जो टारगेट फर्म है दे आर नाउ इन द सेफ हैंड. Acquired firm will also be happy expecting some return from the acquiring firm. Acquired firm भी खुश होता है because they are expecting some return from the acquiring firm. So is it appropriate to acquire successful firm और अनसक्सेसफुल फर्म? सपोज एक बड़ी कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट दे कैन एक्वायर अ वेरी सक्सेसफुल फर्म. एक कंपनी अच्छी जा रही है तो वो उसको एक्वायर कर सकता है. ऑन द अदर साइड दे मे हैव अनदर ऑप्शन ऑफ एक्वायरिंग एन अनसक्सेसफुल फर्म. सो जो नॉर्मल फिनोमेना है दैट टेल्स कि नहीं, कंपनी को हमेशा सक्सेसफुल फर्म के पास जाना चाहिए टू एक्वायर. ऑन द अदर साइड अगर एक फर्म अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली अगर कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी तो उस पर बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है. सो द नेचुरल सेंस टेल्स बेसिकली कि कंपनी को हमेशा अच्छी फर्म के पास जाना चाहिए टू एक्वायर फॉर एक्विजिशन, और जो बुरी फर्म्स हैं उनकी एक्विजिशन से इज्तनाब करना चाहिए. बट द थिंग इज, सपोज एक कंपनी किसी अच्छी फर्म को एक्वायर करता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? सो सक्सेसफुल फर्म बेसिकली रिक्वायर ह्यूज सम. सपोज एक फर्म दूसरी अच्छी फर्म को एक्वायर करना चाहता है तो ऑब्वियसली जो अच्छी फर्म है वो अपनी वैल्यू ज्यादा बताएगी
and it's very difficult for the acquirer firm to acquire a successful firm because it requires a very huge amount, a very huge sum to acquire a successful firm. Because successful firm acquirer firm को एक्विजिशन उस वक्त देगी जब उसको वो एक बहुत ही हैंडसम पैकेज देगी, जो कि समटाइम्स एक्वायरर फर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता. सो वन कैन एज्यूम कि इट्स गुड टू गो फॉर द सक्सेसफुल फर्म टू एक्वायर, लेकिन सक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करना इट्स नॉट दैट मच सिंपल और इजी. So net return for the acquirer firm may not be appropriate. For example, company A company B को acquire करना चाहती है. Company B is a target firm basically or a successful firm. So जो acquisition का जो process है, that cost company A, suppose 10 million rupees. As you know, dear students, 1 million में we have 10 lakh rupees. So 10 million means 10 multiplied by 10, that is equal to 1 crore rupees in Pakistan. So ये for example, this is an ideal situation. Normally acquisition में काफी करोड़ों, sometimes अरबों रुपए लगते हैं companies का. So कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करना चाहती है एंड कंपनी बी इज अ वेरी सक्सेसफुल फर्म. सो सारे प्रोसेस में दैट प्लेस जिसमें कैश पेमेंट, स्टॉक्स, प्रीमियम एटसेट्रा एक्सेट्रा, कंपनी ए को 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट होता है. लेकिन कंपनी ए ये भी देखेगी कि भाई मैं तो सक्सेसफुल फर्म को एक्वायर कर रहा हूं, उसको खरीद रहा हूं, लेकिन और मुझे 1 करोड़ का कॉस्ट भी हो रहा है. सो आइदर फ्यूचर में विद देयर एक्विजिशन मुझे क्या वो 1 करोड़ रुपए रिटर्न होंगे या नहीं. सो सपोज अगर कंपनी ए ये देखती है कि उसको रिटर्न में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फायदा होगा, सो ऑब्वियसली दे विल बेयर दिस कॉस्ट. लेकिन अगर वो ये देखती है कि भाई मुझे फ्यूचर में 1 करोड़ से कम इनकी तरफ से रिटर्न मिलेगा, 50 लाख या 40 लाख या 60 लाख, तो ऑब्वियसली कंपनी ए एक्वायरर फर्म कभी भी कंपनी बी सक्सेसफुल फर्म की एक्विजिशन के लिए नहीं जाएगा. सिमिलरली देयर इज अनदर केस वेयर यू वांट टू एक्वायर an unsuccessful firm. For example, जिसमें that required comparatively less money to acquire and net return may be appropriate for acquirer firm. On the other side, suppose a company A दूसरी company B. Company A is an acquirer firm. Company B is a target or acquiree but unsuccessful firm. So natural thinking is कि कंपनी ए को कंपनी बी एक्वायर नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी ए ये देखती है कि कंपनी बी चूंकि अनसक्सेसफुल फर्म है तो उसके लिए इतना कॉस्ट नहीं पड़ेगा. सो अगर सपोज अगर ये सारे प्रोसेस में अगर कंपनी ए को जो कि एक्वायरर फर्म है उसको फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की कॉस्ट आती है और फ्यूचर में वो देखते हैं कि हमें इनके बिजनेस से कितना फायदा होगा, इफ दैट सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन इज मोर देन 30 लाख और 40 लाख, तो ऑब्वियसली एक्वायरर फर्म और कंपनी ए फर्म दे विल गो एंड दे विल एक्वायर कंपनी बी, ऑल्दो कंपनी बी इज एन अनसक्सेसफुल फर्म. सो इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग कि no one can claim कि always go for the successful firm and not for the unsuccessful firm. So sometimes for the acquirer firm it's more
fruitful to go for the unsuccessful firm acquisition rather than to go for the successful firm acquisition. But acquisition always bring increase in share price because now the firm will work hard to get the stock market expectations. लेकिन चाहे वो आप सक्सेसफुल फर्म के साथ एक्विजिशन करते हो, चाहे आप अनसक्सेसफुल फर्म के साथ एक्विजिशन करते हो, सो एक्विजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिंग सम गुड रिजल्ट्स फॉर द फर्म. आपकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है. एंड ऑब्वियसली जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, नाउ दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड. उन्होंने मेहनत करनी होती है बिकॉज जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करना होता है. एंड नॉर्मली द मार्केट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मर्जर एज वेल एज द एक्विजिशन इज कि अभी जो फर्म जो मर्ज हो गई है या जो एक्वायर हो गई है वो अच्छा परफॉर्म करेगी. सो इस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए नॉर्मली द कंपनी दे वर्क वेरी हार्ड. और उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि चाहे मर्जर हो या एक्विजिशन हो, द फर्स्ट स्टेप इज सिंपली फायर योर बैड मैनेजर्स और योर बैड स्टाफ by giving some premium to the shareholders. And another thing is कि आप जो शेयर होल्डर्स हैं चाहे मर्जर में या एक्विजिशन में, यू मस्ट हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रीमियम. उससे क्या होगा? उससे ये होगा दैट विल मेक हैप्पी द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जब आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो भी खुश होंगे बिकॉज एक्विजिशन और मर्जर it's a sort of a very risky job or risky trend for the shareholders. उनको बहुत डाउट में होते हैं कि भाई अगर हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो हो सकता है कि हमारी शेयर प्राइस कम हो या ज़्यादा. सो टू मेक देम हैप्पी आपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ प्रीमियम देना होता है. उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप शेयर प्राइस पे कुछ प्रीमियम देंगे तो ऑब्वियसली जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, जिससे आपकी कंपनी फ्लरिश करेगी. आपकी कंपनी मार्केट में उसके पास नया बिजनेस आएगा, दे मे हैव मोर कैपिटल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी तरह यू कैन मेक द एक्विजिशन और द मर्जर प्रोसेस सक्सेसफुल. Otherwise, the firm will go in chaos. Suppose अगर ये सब कुछ नहीं होता, मर्जर के बाद भी कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, कंपनी की रेपुटेशन ठीक नहीं होती मार्केट में, या एक्विजिशन के बाद जो एक्वायरर फर्म और एक्वायरी फर्म के दरमियान जो एक्विजिशन होती है अगर उसको मार्केट में पॉजिटिवली हैंडल नहीं किया गया, उसको पॉजिटिवली नहीं लिया गया, तो ऑब्वियसली व्हाट वुड बी द नेक्स्ट फेस ऑफ द पिक्चर? ऑब्वियसली द केओस. कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती तो उससे कंपनी की शेयर प्राइस अगर होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो उसकी कंपनी की शेयर प्राइस कम हो सकती है, कंपनी डूब सकती है. एंड दिस कैन क्रिएट अ वेरी alarming situation for the company's management as well as the shareholders. So what if the management acquiring firm didn't accept the takeover bid? Then the acquirer may try to take their takeover bid directly to the target firm's large shareholders. If they can enough shares, then they can effectively take control of the target firm and thus the target firm management. And this is what they call hostile takeover. For example, अगर दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट के दरमियान डायलॉग्स सक्सेसफुल नहीं होते, एक्वायरी फर्म मैनेजमेंट कहती है दैट वी आर नो मोर इंटरेस्टेड फॉर योर बिड, हम नहीं चाहते कि आप हमारी कंपनी को एक्वायर कर लें. सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो एक्वायरर फर्म होती है
वो डायरेक्टली बाय पासिंग द मैनेजमेंट, वो जो एक्वायरी फर्म की जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको परचेस करने के लिए या उनको बाय करने के लिए या उनको टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं. वंस द एक्वायरर फर्म कुड गेट 51% ऑफ शेयर्स, तो ऑब्वियसली नाउ दे आर द ऑनर ऑफ द फर्म. तो अगर एक्वायरर फर्म ने समहाउ 51% शेयर्स ले लिए तो फिर वो एक्वायरर फर्म के ऑनर ऑलमोस्ट बन जाते हैं, एंड ऑब्वियसली द target firm's management, and this is what they called hostile takeover. So the process जिसमें acquirer firm टेक ओवर करती है मैनेजमेंट को, या एक्वायरर फर्म बाईपास करती है मैनेजमेंट को ऑफ द एक्वायरी फर्म और वो शेयर्स ले लेती हैं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि दे विल फायर द एक्वायरी फर्म मैनेजमेंट, और वो इस चीज़ को हॉस्टाइल टेक ओवर मीन्स कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और हमें बताए बगैर एक्वायरर फर्म ने हमारी कंपनी के लार्ज शेयर्स ले लिए हैं, नाउ दे आर इन डेंजर टू बी गेट फायर्ड, तो इसलिए दे कॉल इट एन हॉस्टाइल टेक ओवर. बट हॉस्टाइल टेक ओवर इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, टारगेट फर्म्स मैनेजमेंट, बिकॉज इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि टारगेट हॉस्टाइल टेक ओवर इज बेसिकली इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मींस के एक्वायरी फर्म या टारगेट फर्म की मैनेजमेंट अगर इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं तो ये, और उनके साथ ये बड़ा जुल्म हो रहा है, अब उनको फायर किया जाएगा, तो ये एक किस्म का जुल्म नहीं है. बिकॉज सपोज एक कंपनी एक्वायर हो रही है, सो इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से कंपनी टेक ओवर हो रही है, सो नाउ अगर अब उसको फायर किया जाएगा, सो दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ हॉस्टाइल, दैट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ क्रूअल एक्ट विद द मैनेजमेंट. सो हॉस्टाइल टेक ओवर इज बेसिकली इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. मैनेजमेंट ऑफ द एक्वायरी फर्म कहती है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म इसलिए नहीं हो रहा कि बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी कंपनी टेक ओवर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली जब दूसरी कंपनी आएगी तो वो उसको फायर कर देगी. एंड देयर आर द बेसिक जो मेन 3 रीजंस हैं कि कंपनी को नॉर्मली हॉस्टाइल टेक ओवर इसलिए नहीं कहते, बिकॉज मेनी इनिशियल hostile acquisition are eventually approved by the target firm. के एक्विजिशन को अगर टारगेट फर्म ने अप्रूव कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म. जब टारगेट फर्म कह रही है कि आके आप हम एक्वायर कर लें, तो फिर उसमें किसी किस्म की क्रुएलिटी का या किसी किस्म के जुल्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ऑल्सो सम फर्म फियरिंग अ हॉस्टाइल टेक ओवर may try to work out a friendly deal which heavy perks for the management as well as premium for the target firm shareholders. दूसरे केस में जब एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को एक्वायर कर रहा होता है, सो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू द फ्रेंडली डील. डील में क्या होता है कि मैनेजमेंट को काफी इंसेंटिव्स मिलते हैं, गोल्डन शेक की शक्ल में या मुख्तलिफ किस्म की इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिससे मैनेजमेंट भी खुश. ऑन द अदर साइड जो शेयर होल्डर्स को जो इंक्रीज इन प्राइस शेयर प्राइस मिलता है वो भी खुश. जब मैनेजमेंट भी खुश, शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरी फर्म वो भी खुश. सो दैट इज बेसिकली डन थ्रू अ फ्रेंडली डील बिटवीन दीज 2 फर्म्स. सो सिंपली कॉल्ड it as an hostile takeover, that is not appropriate. So in both of these cases the firms involved or the firms involved may publicly state that their mergers acquisition was a friendly one. Both cases में जो normal public को जो इमेज जाता है वो ये कि बेसिकली दैट इज अ फ्रेंडली डील एंड वी बोथ आर वेरी हैप्पी. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिंग बाय कॉलिंग इट एन हॉस्टाइल टेक ओवर.
So this is the end of our today's lecture. Let's have a summary of what we studied today. We studied today the brief overview of merger and acquisition, that there are certain reasons why merger and acquisition took place, in which में हमने discuss किया strategic reasons. Strategic reason में that is basically to reduce the cost and to get new businesses. You want to reduce your cost and you want to get new businesses. Then synergistic reason, basically the combined effort, that is the main purpose of merger or acquisition. Individually जब companies काम करती हैं, so इतना effectively market में उनका flourish नहीं कर सकती. लेकिन once they got this sort of merger or acquisition, उससे ये होता है, now they are strong enough to make their business in the market. Then diversification, another main reason of merger and acquisition is diversification, that is to reduce the risk by making investment in different locations. कि merger और acquisition लोग इसलिए करते हैं या companies इसलिए करती हैं that they want to diverse their investment, because इससे ये होगा, अगर एक जगह इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हुई है, सो ऑब्वियसली जो रिटर्न होती है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है. अगर कंपनी डूब गई तो आपकी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है. सो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ getting toward the acquisition or merger. Then we discuss our corporate takeover good for shareholders, acquirer firms perspective as well as acquiring firms perspective. So acquirer firms के shareholders का main मकसद ये होता है basically कि उनको एक किस्म का they may have more capital in their hand, or they can use the infrastructure of the company, of the acquiring company, and etc etc. So उनका main reason ये है कि they want to get some return, extra return from this process of merger or acquisition. Acquiring firms shareholders perspective is that they now previously they were basically in a very desperate position because company की शेयर प्राइस कम हो रही थी, कंपनी इतना मार्केट फ्लो नहीं था उसका. Now by having take over from a larger firm, now they are some sort of in a safe hand में है. So now maybe future में they may have a very handsome increase in their share price. तो अगर इनको जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जब वो उसको मार्केट में भेजेंगे, सो दे विल गेट सम वेरी हैंडसम रिटर्न फ्रॉम देयर शेयर्स. Then the target firm that we discussed, the main जो target firm को जो फायदा होता है in one way or the other, that is obviously the increase in share price. उनको शेयर प्राइस में इंक्रीज होता है and that's how they can get their return. Then is it appropriate to acquire successful firm and unsuccessful firm? Then we discussed कि successful firm को acquire करना it's not always very good for the acquirer firm. Sometimes unsuccessful firm को acquire करने से you can at least get your predicted return. जो आपकी तरफ से prediction होती है, आप उस return से ज़्यादा आपको मिलता है. And mostly successful firm में you have to pay more to acquire a very successful firm, because they have some reputation in the market, they have a very stable share price. So इस situation में successful firm को acquire करना for another firm बहुत कॉस्टली होगा. सो अगर एक फर्म ये एनालाइज कर लेती है कि इस प्रोसेस में जो कॉस्ट होगा, अगर फ्यूचर में उसका रिटर्न हमें कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट गो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन. लेकिन अगर अनसक्सेसफुल फर्म में उनकी कॉस्ट कम होगी बिकॉज दे हैव अ वेरी लो शेयर प्राइस, उनकी मार्केट वैल्यूएशन इतनी नहीं है, मार्केट शेयर उनका इतना नहीं है, सो ऑब्वियसली
acquiring the unsuccessful firm sometimes can give you more return. So it's up to you कि आप सक्सेसफुल फर्म की तरफ जाते हैं या अनसक्सेसफुल फर्म की तरफ जाते हैं. बट वी कैन नॉट 100% से कि भाई सक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करने से आपको नुकसान होगा. समटाइम्स अगर सक्सेसफुल फर्म आप एक्वायर कर लेते हैं बाय गिविंग मोर मनी, बाय कॉस्टिंग मोर, सो ऑब्वियसली हो सकता है फ्यूचर में वो आपको ज्यादा हैंडसम वो रिटर्न दें. सिमिलरली अगर आप अनसक्सेसफुल फर्म को एक्वायर कर लेते हैं विद दिस व्यू कि कॉस्ट तो कम हो रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या कुछ अरसे के बाद हो सकता है आपको उस जो आपका जो प्रेडिक्टेड रिटर्न है उससे कम मिले. सो हो सकता है कि अनसक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करने से आपको ज्यादा नुकसान हो. सो इट्स अप टू यू कि आपने सक्सेसफुल फर्म की तरफ जाना है टू एक्वायर, और यू वांट टू एक्वायर द unsuccessful firm. So what if the management acquiring firm did not accept the takeover bid? As we have discussed, acquisition basically the dialogue is between the management. So agar acquiring firm ki management, if they are not happy, if they don't want the acquirer firm to acquire their firm, so फिर acquirer firm क्या करती है, मैनेजमेंट को बाईपास करके वो एक्वायरी फर्म की जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उसको एक्वायर करना चाहते हैं. सो वंस दे गेट द 51% ऑफ एक्वायरी फर्म्स शेयर्स, तो दे आर नाउ द ओनर ऑफ द फर्म. एंड the management of the acquiring firm, they normally call it as an hostile takeover कि भाई हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन hostile takeover is in the eye of the beholder कि उनकी नज़र में ये उनके लिए hostile, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनके साथ बहुत cruel act हो रहा है. लेकिन in a real sense this is not a sort of an hostile act because of their inefficiency कंपनी इस हालत को पहुंची है कि कंपनी टेक ओवर हो रही है. तो अगर दूसरी फर्म या एक्वायरर फर्म बैड मैनेजर्स को वो फायर कर देती है, सो दैट इज नॉट एन होस्टाइल एक्ट. अनदर थिंग इज कि एक्विजिशन मर्जर बीइंग अप्रूव्ड बाय द टारगेट फर्म. जब भी प्रोसेस होता है एक्विजिशन का या मर्जर का, टारगेट फर्म की खुशी से होता है. So just by calling it as an hostile takeover is not good. Then the target firm may go for friendly deal, perks for the management and premium for the shareholders. Another thing in merger and acquisition is कि target firm they go for the friendly deal, जिसमें management को काफी handsome packages मिलते हैं, जिसमें one of the जो biggest packages हैं that is the golden handshake. काफी अच्छी handsome amount मिलती है top management को और शेयर होल्डर को प्रीमियम मिलता है. तो जब मैनेजमेंट भी खुश, शेयर होल्डर भी खुश, सो जस्ट बाय कॉलिंग इट एन होस्टाइल टेकओवर इज नॉट appropriate. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.